آپ کی آواز آنی چاہیے. آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. وقت بہت دامنگیر ہے. آلموسٹ 12 بج چکے ہیں اور شکر گزاری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے کلمہ کو اولین درجہ دیتے ہیں، خدا کو اول درجہ دیتے ہیں. صرف 5 یا 6 منٹ کے لیے ہم اپنی چہل قدمی بند کریں گے. جو بھائی یا میری بہنیں یا بزرگان کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب وقت ہے کہ خدا کا کلمہ بولنے کو ہے. آئے میرے ساتھ، اگر کسی کے پاس بائبل مقدس ہے، موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں. کلام میں سے دیکھیں گے پرانے عہد نامہ کی سب سے پہلی کتب میں سے ایک کتاب، بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور دوسرے باب کی 21ویں، 22ویں اور 23ویں، ان 3 آیات کو میں آپ سبوں کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کلام اقدس کے اندر کچھ یوں لکھا ہے: اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکلی ہے. بائبل مقدس کا ہم سبوں کے لیے پڑھا جانا، سنا جانا اور آج سے اس پر غور اور عمل کیا جانا ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. آمین بول سکتے ہیں آپ؟ زوردار آمین بولیں گے. ہم اپنے مالک یسوع کا دل کی نہایت گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم بھائی نوید اور بیٹی زوبیہ کی شادی کی ان تقریبات کا آغاز کرنے کو ہے. کتنے لوگ اس پاک رسم سے جی بھائی ساگر اور سدرا بہنا کی بھی 2 ہی دولہے ہیں اور 2 ہی دلہن. میں چاہوں گا ہم ایک بار زوردار تالی بجائیں گے. ہم اس شادی کی تقریبات میں شامل ہوئے ہیں اور کون کون اس شادی کو لے کر ایکسائٹڈ ہے؟ ہم سبھی ایکسائٹڈ ہیں، تو اپنے ایکسائٹمنٹ کو ظاہر کریں تالی بجا کر. آج جو حوالہ میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا، بائبل مقدس کے مطابق یہ جو نکاح کی رسم ہے یا پھر شادی کا جو یہ بندھن ہے، یہ کسی بادشاہ یا پھر کسی عہدہ دارین شخص یا کسی عدالت کا بنایا ہوا قانون یا پھر کسی سردار کی لکھی ہوئی یا کسی مصنف کی لکھی ہوئی من گڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ شادی کا یہ سیکرامنٹ، شادی کی یہ رسم بائبل مقدس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے. یہ ایک پاک بندھن ہے. اور یاد رکھیں میرے عزیزوں، شادی کا یہ جو بندھن جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کچھ عہد کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور پھر ساری عمر ان عہدوں کو، ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ عہد بالخصوص رب کائنات نے بائبل کے مطابق جو ہے ہم تک سونپے، ہمیں پہنچائے ہیں. اور یہ قدیم زمانہ سے بائبل مقدس کی رسومات رہی ہیں کہ انسان کو مالک نے مٹی سے تخلیق کیا. اور جیسے کہ ہم نے ایک عبارت کو پڑھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو مٹی سے بنایا، اسے قبل کہ آدم تخلیق کیا جاتا، اس سے پہلے کہ آدم بنایا جاتا، آپ کے اور میرے رب کائنات نے اس پوری دنیا کو خلق کیا. اس نے پرندوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا،
जमीन और खुश्की को और पानी को अलग अलग किया, पेड़ पौधे लगाए। ये हमें इंसानियत के लिए उसकी मोहब्बत नजर आती है। आपके और मेरे परवरदिगार ने इससे कबल के वो इंसान को खल्क करता, उसने सबसे पहले इंसान की गुजर बसर के लिए, उसके रहने के लिए, उसके खाने पीने का इंतजाम किया। और फिर मालिक ने कहा कि सब कुछ अच्छा है। और फिर उसने सोचा, उसने कहा कि अब मैं अपनी मानिद, किसकी मानिद बोलिएगा? अपनी मानिद, अपने जैसा एक इंसान जो है उसको बनाऊंगा। यानी कि खुदा ने, यहोवा ने अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर आदम को बनाया और मिट्टी से उसको तख्लीक किया। और जब सब कुछ अच्छा हो गया, आदम को बनाने के बाद आपका और मेरा खुदा कहने लगा कि ये अच्छा नहीं है। अब सब कुछ तो अच्छा था, आदम को बनाने से पहले भी परवरदिगार ने कहा कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही आदम को तख्लीक किया गया तो आपका और मेरा परवरदिगार कहने लगा कि अब अच्छा नहीं है। उसने फिर आदम को गहरी नींद सुलाया, और आदम जब गहरी नींद में सो गया तो आदम की पसलियों में से एक पसली को लिया और उस पसली में से, उस पसली को निकालकर उस पसली की जगह गोश्त भर दिया। और फिर उस पसली से एक औरत को पैदा किया जिसका नाम हव्वा रखा गया, जो नारी कहलाई, जिसके बारे में आदम ने कहा कि अब तो ये मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है। अब जब कि वो औरत बन गई, वो खल्क की गई, और खुदा उस औरत को आदम के पास लेकर आया, और आदम और औरत को दोनों को देखकर आपके और मेरे आका ने कहा, आपके और मेरे रब्बे कायनात ने कहा कि अब अच्छा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, हम चंद आयतों को आगे तिलावत करें तो इसी चैप्टर के अंदर हमें वाज़िह तौर पर नजर आता है कि मालिक ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए खुदा ने आदम के लिए एक मददगार को बनाया, आदम के लिए हव्वा को पैदा किया। और फिर जब बनाया गया, खुदा ने कहा कि अब तुम बढ़ो, फूलो और जमीन को क्या करो? मामूरो, माखूम करो। और याद रखें मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल की तालीमात के मुताबिक, ये जो रिश्ता अज़दवाज है, इसके ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें वाज़िह तौर पर लिखी गई हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई आदमी जुदा ना करे। और फिर जोड़े के लिए खास तौर पर कहा गया है कि ये एक दूसरे के साथ मिले रहें। और याद रखें, इब्रानी लफ्ज जो जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका जो तर्जमा है, उर्दू तर्जमा, वो है गूंद से जुड़ना, गूंद से जुड़ना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये दोनों एक तन होंगे। और याद रखें, जो ताल्लुक, जो अज़दवाज, जो रिश्ता शादी का और जिसका दरमियानिया यीशु मसीह होगा, वो जोड़ा भी बाबरकत होगा और उनकी आने वाली नस्लें भी बाबरकत ठहरेंगी। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकत से मालामाल करे। आमीन कह सकते हैं हम। आए हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और एल्डर साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और दुआ करेंगे, और इसके बाद आप शादी की तकरीब को शुरू करेंगे। हालेलुया। पास साहब ने जो कलाम दिया वो सबके लिए बाइस से बरकत था, और मुझे भी बरकत मिली। उम्मीद है कि आपको भी बरकत मिली होगी। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे खुदावन से। आसमान और ज़मीन को खल्क करने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने आज का जो कलाम हमारी ज़िंदगी में बख्शा वो बड़ा ही बाबरकत था, जिसके वसीला से खुदावन हम सब ने बड़ी बरकत पाई। खुदावन वो 100 गुना हमारी ज़िंदगी में फल लाए। खुदावन जैसा कि खुदा के खादम ने कहा कि मियाँ बीवी एक तन है, अपने माँ बाप को छोड़ेंगे, और खुदावन तेरे कलाम में भी ये लिखा है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस
रस्म राज के लिए जो अभी होने वाली है खुदावंद, वो बड़ी बरकत देना इन जोड़ों को, इनके साथ रहने की ज़िंदगी करना, इनको सलामत रखना हमेशा, और इनको खुदा बरकतों से तू माला माल करना प्यारे खुदावंदा। खुदावंद मैं सारे प्रोग्राम को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जितनी देर भी ये प्रोग्राम चले खुदावंद, तेरे कादवर खरोबियों का पहरा यहाँ पर लगा रहे। तेरे कादवर खरोबियों को मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ खुदावंद। तो खुदावंद इनकी रहनुमाई करना, हिफाजत करना, और दूर से आने वाले मेहमानों के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तो उनको खैरियत से इस पंडाल तक पहुँचाया, और खुदावंद ये रात इनके लिए बाबरकत हो मेरे खुदावंदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खाने के लिए खुदावंद जो इंतज़ाम किया गया है उस पर बड़ी बरकत डालना खुदावंद। जिस तरह तूने खुदावंद उन 5000 लोगों को खाना खिलाया और लोग सैर हुए, इस तरह इस खाने में बरकत डालना तेरे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम वही दुआ मांगेंगे जो आपकी और मेरे मालिक यीशु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कर्ज़दार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ बख्श। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। कलाम बरक़ात के लिए मैं खुदा के खादम पास्टर यूबाब को दावत दूँगा कि वो सिजदा